Assalamu alaikum. Good morning, viewers. I hope you will be enjoying good health. Yesterday we discussed the concept, the usage of adverbs on advanced level. Today we will discuss the concept of adjectives on advanced level. So these both are highly sister parts of speech, and the view that they sometimes we use the same words in both adverbs and adjectives, but in a different context. Okay, see you inshallah. We will discuss now. We will discuss now without any delay. We go towards the slides to discuss the concept of adjectives. You will have heard a lot about it, and you will have some knowledge of adjectives definitely, but to the level that you need as an FSC student for your certain tests and examinations, you need its high level, its mature concepts, its maximum usage, its types, and everything. So we start. So it is one of the comprehensive lecture series. It's one of the comprehensive lecture series on the correct use of adjectives. Today we'll discuss the adjective. Next, introduction to adjectives. We will discuss in the we are going to discuss introduction to adjective, types of adjectives, position of adjectives, correction rules, practice questions, and past questions. We will discuss the past paper questions too. We will discuss the past paper questions too. So first of all, we will discuss what is an adjective actually. Adjectives are words that are used to describe nouns and pronouns and to quantify and identify them. देखिए आपने जिस तरह देखा था एडवर्ब जो थे सवाए नाउन और प्रोनाउन के तमाम चीजों को अफेक्ट करते थे, तो जो एडजेक्टिव है ये सिर्फ दो चीजों को डिस्कस करता है कि नाउन्स और प्रोनाउंस में उनको क्वांटिफाई भी करता है, काउंटिंग भी बताता है और उनकी शनाख्त भी बताता है. द वर्ड स्वीट मैंने अब जब शुरू में कहा था, समटाइम्स we use the same word as an adjective and same word as an adverb. If the word is describing some noun or pronoun, then it is adjective. If the same word is describing some action, then it is adverb. So there is some confusion, there is some problem here that you must clarify. बड़ी क्लियर बात है, इसमें कोई कभी आपको मिक्स नहीं करना चाहिए. चीज़ों को मिक्स हो जाती है वैसे जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है, they mix the things. But see that you will look at the word sweet, hard, slow. A slow can be action, there can be slow path. भाई स्लो जो है ये एक्शन भी हो सकता है, ये कोई बंदा भी हो सकता है. So when it is noun, it is adjective. When it is describing some action, then it is adverb. So using sentence, see that he is a very cute boy.
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट है, ये तो बड़ी फेमस बातें हैं, आप देख लें। लेस, लेसर, लीस्ट होता है, इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है इट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेस, लेसर, लेसेस्ट नहीं है, लेसर भी नहीं है, लेस, लेसर और लीस्ट जो है ये माइंड में रखें, इज द थर्ड डिग्री ऑफ लेस, कम अज कम जिसे कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा ये बातें बड़ी जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट तो जानना है ना इसका, एडजेक्टिव्स का। उसमें ये पॉजिटिव डिग्री होती है, पहली डिग्री याद रखना, कोई मुस्बत डिग्री नहीं होती है, इट इज पॉजिटिव, इट इज फर्स्ट डिग्री, इट इज यूज्ड टू शो ए जनरल क्वालिटी और कंपैरिजन। ही इज अ वेरी क्यूट बॉय, जनरली आप उसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं, आप फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं जब उसका कंपैरिजन किसी से नहीं है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री होती है दूसरी डिग्री एडजेक्टिव की, इस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है। यानी जो सेकंड डिग्री होती है एडजेक्टिव की, जो फर्स्ट डिग्री है वो पॉजिटिव कहलाती है, सेकंड डिग्री जो है वो कंपैरेटिव कहलाती है। अच्छा, ये तब भी यूज होती है जब कंपैरिजन करना हो, जब मवाजना करना हो दो चीजों के दरमियान, इसीलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, एलिमेंट्स और पर्सन्स। यूज इन सेंटेंस देख ले, ही इज क्यूटर देन जमील, he is taller than you, she is more beautiful than you, he is faster than you, आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती है थर्ड डिग्री, that this degree is used to show the best among three or more elements। जब तीन या तीन से ज्यादा चीजों के दरमियान आपने किसी बंदे को अहमियत देनी है तो फिर आपने सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करना है। यूज इन सेंटेंस, ही इज द क्यूटेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव नाम से जाहिर है, देखिए चीजों को नाम जरूर जाना करें, हम ऐसे नाम पढ़ के चले थे, पोजेस के माने तो रखना। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी चीज की मलकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू हैव समथिंग, possessive adjectives show that you have the possession of something, you have something, you are honor of something, you are handling something that is on your own disposal. A possessive adjective expresses possession of a noun by someone or something, my book, your pen. Table of personal pronouns, ये आपको पता होना चाहिए। माइन और माई जो पैसिव केस है एडजेक्टिव को शो करता है। आवर, योर, हिज, हर, देयर, आपको वैसे ही टेबल आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, माई, माइन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर हिम होता है, रिफ्लेक्सिव उसका। फिर हिज होता है पोजेसिव उसका, और सॉरी उसका एडजेक्टिव होता है पोजेसिव, और फिर उसके बाद हिज ही उसका पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह हर, हर और हर्स, देम है, देयर है और देयर्स है, इट है, इट्स है और इट्स है। ये टेबल आप अच्छी तरह माइंड में रख लें।
Now we come toward the proper adjectives. Adjective is made up of proper nouns. Russian girl, Pakistani carpet, Indian house. यानी जो जिसको आप इसमें कहते हैं, इसमें मार्फा कहते हैं ना, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो पार्टिकुलर चीजों को शो करते हैं, जो किसी नाम को, किसी खास चीज जगह के नाम को शो करते हैं. प्रॉपर नाउन्स आर नाउन्स दैट शो पार्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स. आप जानते हैं इनको, आप उर्दू में इसमें मार्फा भी कहते हैं. इस तरह अब गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है, तो रशियन गर्ल प्रॉपर नाउन है, मखसूस हो गया ना. अच्छा, कारपेट कॉमन नाउन है, लेकिन पाकिस्तानी कारपेट ये प्रॉपर नाउन है. और रशियन गर्ल, अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाएंगे, आम गर्ल नहीं उसकी. अब ये कैटेगराइज हो गया, रशियन गर्ल हो गई, तो पाकिस्तानी कारपेट हो गई. अब आम कारपेट नहीं है, जाहिर है कारपेट नाउन है, इसको जब डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव ही होगा. तो हाउस आम नहीं है, कॉमन नहीं है. इंडियन हाउस तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो, चूंकि उसने हाउस को डिस्क्राइब किया है. ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, हम ये क्या तय कर चुके हैं, वो एडजेक्टिव की ही कोई किस्म होती है. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. A demonstrative adjective, this, that, those, these, shows the noun it modifies is singular or plural, or whether the position of the noun is near or far from the person who is speaking or writing. A demonstrative adjective also points out a fact about the noun. लाइन को बड़ी अच्छी तरह समझ लें. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब तो बस इशारा करना, शो करना, आपको पता ही है. तो दिस, दैट और दीज और दोज जो है ना, ये जब किसी नाउन को से पहले आते हैं, जब किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. ठीक है. वैसे ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होते हैं, आपको पता ही है. इनको प्रोनाउन पे भी हम डिस्कस करेंगे. शोज द नाउन इट मॉडिफाइज इज सिंगुलर और प्लूरल. जो जब उस किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं और उस पर असरअंदाज होते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं. इस सिंगुलर और प्लूरल जो वो वाहद है, जमा है. एंड वेदर द पोजीशन ऑफ द नाउन इज नियर और फार, बेशक जो नाउन है वो करीब है या दूर है. द पर्सन स्पीकिंग और राइटिंग, जो बंदा बोल रहा है या लिख रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आल्सो पॉइंट्स आउट अ फैक्ट अबाउट द नाउन. दिस रेड बैलून इज माइन and those 3 yellow ones are yours. This red balloon, अब इस रेड बैलून की तरफ उसने इशारा किया, दिस ने, ज़ाहिर है ये वो रेड बैलून है जो ये है, इसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है. दिस रेड बैलून, इट इज डिस्क्राइबिंग द रेड बैलून. अच्छा, इसको टेक्निकल बात याद रखें, जब कोई चीज किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा हो ना, तो आपके ज़हन में ये बात खटक जानी चाहिए कि ये है कोई एडजेक्टिव ही. ये बात आपको मैं बड़ी पक्की बता रहा हूँ. जब कोई वर्ड किसी न किसी सतह पर, जब किसी नाउन से कोई लिंक बना रहा हो, नाउन या प्रोनाउन से, उसको तरफ इशारा कर रहा हो, उस पर इफेक्ट हो रहा हो, उसकी जगह बता रहा हो है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा हो, तो फिर वो किसी न किसी लेवल पे जाके एडजेक्टिव की सेट होता है. इज माइन एंड दोस 3 येलो वंस आर योर्स. इशारा डेमोन्स्ट्रेट कर. These 2 fat cats have tails, but that thin cat does not have a tail. Qualitative or descriptive adjectives. These adjectives describe and tell the quality of the noun modified. जिस नाउन को ऊपर आपने इफेक्ट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, उसकी क्वालिटी को बताता है. डेंजरस केमिकल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्क्वाड बॉक्स, अ बिग हाउस, ये तो आम सा, ये सबसे ज्यादा यूज ही होते हैं. ये आप नाउन है, आपको बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं इन चीजों को.
Now we come towards the quantitative. These adjectives indicate the quantity of some elements. These adjectives answer the question how much. याद रखना ये how much के जवाब में यूज होते हैं. एक टूल बना लें. जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा हाउ मच का आंसर होता है. सम वाटर, लिटिल शुगर, नो साल्ट्स. न्यूमेरिकल, दीज एडजेक्टिव स्पेसिफाई नंबर एज द मॉडिफायर नाउन और प्रोनाउन. ये काउंटिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. दीज आर ऑफ टू काइंड्स, कार्डिनल, ऑर्डिनल. जब कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं इस तरह 6 गिनती जिसे आप कहते हैं, ठीक है, 24 स्टूडेंट्स, 6 बटन्स, ये थर्ड, फर्स्ट, 20th, फोर्थ, जो इस तरह आपको पता है ये ऑर्डिनल अरेंजमेंट होती है. नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. These adjectives refer to each noun separately and singly. Each person, either way, neither party. ये बात आपने बस याद रखना है. Each, either, neither, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. बस बात बिठा ले बस ध्यान में. नेक्स्ट वी कम टुवर्ड्स द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. These adjectives are used with the noun for asking questions. What, which, those, ये कितनी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं. ये प्रोनाउन भी होते हैं. ये मतलब एक वर्ड है उसका फंक्शन बताता है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच के किस डोमेन में जाता है. वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो जनाब एडजेक्टिव है. तो इसलिए आपने वर्ड को उसके फंक्शन के एतबार से याद करना है. अगर एक वर्ड किसी नाउन से लिंक बना रहा है तो याद रखना वो एडजेक्टिव होगा. अगर वही वर्ड किसी वर्ब से लिंक बना रहा है तो वो एडवर्ब होगा. और अगर वो किसी वर्ड की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है किसी वर्ड को, वो डेफिनेटली प्रोनाउन होगा. What book is lying on the table? Which road leads to Lahore? Whose pen is this? ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स की. एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव. एम्फसाइज का मतलब जोर देना, किसी पे स्ट्रेस करना. व्हेन यू स्ट्रेस समथिंग. So these adjectives emphasize the noun or pronoun to which they belong. These are own and very. Her own friends deceived her. This is my own fault. His very mistake brought about him his ruin. पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है जो आपको टेस्टों में जाकर कंफ्यूज करता है. इनको यूज कहाँ करना है, पोजीशन क्या होती है. इमीडिएटली बिफोर अ नाउन व्हेन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. जब ये किसी को एट्रीब्यूटिवली यानी किसी चीज की क्वालिटी बयान करे, डायरेक्ट यानी किसी नाउन के साथ लिंक्ड हो. द काइंड किंग वाज किल्ड. सेकंड है आफ्टर द वर्ब व्हेन यूज्ड प्रेडिकेटिवली. प्रेडिकेट तो आप जानते हैं, जब ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करे. जब एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करे एज ए प्रेडिकेट यूज हो. आपको पता है कि प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है तफसील. प्रेडिकेट मीन्स द किंग क्या है, सब्जेक्ट है, और आगे जितना भी है ये क्या है, प्रेडिकेट है. तो काइंड चूंकि प्रेडिकेट का हिस्सा यहाँ पर, तो इसलिए इसका ये प्रेडिकेटिव यूज होगा. After the noun when used in poetry, children dear was it yesterday. जब एक्सेप्शन है, कई बार ऐसा हो जाता है. आफ्टर द नाउन व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू नाउन. हाँ, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव अटैच कर दिए जाए तो फिर भी ये नाउन के बाद इस्तेमाल होता है. द किंग काइंड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है.
यानी यूं कह लें, जब किसी नाउन के साथ एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज किए जाएं तो फिर वो नाउन के बाद आते हैं। वैसे आम तौर पे जो एट्रीब्यूटिव होता है, एडजेक्टिव, वो पहले आता है, जिस तरह काइंड के हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा, देखिए ना पिछली स्लाइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा था द काइंड, ये देखे लिखा हुआ है। लेकिन इस स्लाइड, जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस पर काइंड एंड जस्ट दो एडजेक्टिव आ गए। जब दो एडजेक्टिव आ गए तो फिर ये नाउन के बाद आए। मूव फॉरवर्ड। Rule number 5, use number 5. After the noun, when some phrase is joined to adjective, he was a man rich in resources. ये उस वक्त भी बाद में इस्तेमाल होता है नाउन के, जब उसके साथ कोई फ्रेज अटैच की जाए। He was a man rich in resources. He was a rich man in resources गलत होगा। He was a man rich in resources, क्योंकि इन resources क्या है, because of phrase है। यूज नंबर 6 है adjective plus worth plus first form ing is used immediately after the noun to lay emphasis। ये बड़ा मशहूर है, आप करेक्शन के अंदर इसको अक्सर पढ़ते भी हैं। That was the movie, that was the movie worth watching. This is the place worth seeing. आप सॉरी, ये पिछली स्लाइड को देख लें। दैट वाज द मूवी वर्थ वाचिंग। जब भी ये चीज आएगा ना वर्थ के बाद आईएनजी फॉर्म, याद रखना वो नाउन के बाद ही आएगी, कि बस आपने पक्की बात पल्ले बांध लेनी है। दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग, यानी वर्थ के बाद जब आईएनजी फॉर्म आनी है, किसी चीज को उन्होंने किस चीज की क्वालिटी को हाईलाइट करना है, उसकी अहमियत को बताना है, उसकी वर्थ को बताना है, ठीक है, तो याद रखना वो हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप राइट डाउन कर लें। रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जिस तरह हमने रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स पढ़ा था, इस तरह रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स भी होता है। वो भी हमने एक सेंटेंस के जरिए पूरा आपको क्लियर किया था, और ये भी एक सेंटेंस के जरिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई सा आ ब्यूटीफुल बिग ओल्ड इटालियन स्पोर्ट्स कार। ऊपर एडजेक्टिव लिखे हुए हैं कौन कौन से इसके साथ अटैच है। हर एक की पार्ट ऑफ स्पीच में पोजीशन क्या है, जो ए यहाँ पर डिटर्मिनर है, आर्टिकल। अच्छा, आई बॉट द 3 ब्यूटीफुल लिटिल ओवल शेप्ड गोल्ड चाइनीज डाइनिंग प्लेट्स। ये सारे एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आई सैट ऑन, ये पर्पस ऑफ क्वालिफायर भी लिखा हुआ है कि जब उसको हमने अफेक्ट किया है ना, तो क्यों किया है, उसका पर्पस क्या था। अच्छा, आई सैट ऑन एन अमेजिंग हार्ट शेप्ड रेड एंड वाइट सोफा। Yes, these are the correction rules. The comparative and the superlative degrees of one or two syllabic adjectives wise are mostly found by adding er. This is now the formation of adjectives. इन जो adjectives में बनते कैसे हैं। अच्छा, इस लेक्चर को चलो इसी में शामिल कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, तो स्मॉल है, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है, रूल लिखा हुआ है आपके ऊपर। He is more stronger than I.
spot the part segment that has an adjective. ये यहाँ adjective use हुआ है, stronger. और यहाँ पर जो थर्ड सेगमेंट है, strongest bonds. Strongest is the third superlative. हाँ, जिनके जो फॉर्मेशन में ई आर या ई एस टी यूज नहीं होता, उनके साथ हम मोर या मोस्ट लगा लेते हैं. ठीक है. He is intelligenter than I, ये गलत है. He is more intelligent than I. क्या आएगा? He is more intelligent than I. इंटेलिजेंटर तो बनता ही नहीं है, आपको भी पता है. He is more intelligent than I. हाँ, इस एरिया में है. Of these 4 underlined parts of speech sentences, spot the part. इंटेलिजेंटेस्ट तो होता ही नहीं. He is the most intelligent. इस एरिया में है. ये रॉन्ग वर्ड हमने. Rashid is the most intelligent. गुड बेटर बेस्ट होते हैं, कुछ याद कर लें. लिटिल लेस लीस्ट होता है. लेट लेटर लेटेस्ट होता है. मच मोर मोस्ट होता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्लाइड. ठीक है. फर्स्ट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री उससे यूज होती है जब किसी चीज की कोई आम सी क्वालिटी बयान कर ली, जिस तरह ये गुड बॉय. अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री या सेकंड डिग्री उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन हो. थर्ड या सुपरलेटिव डिग्री उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसका 3 या से ज्यादा चीजों के दरमियान कोई चीज अच्छी या बुरी हो, तो उसको कंपैरिजन करना हो. एग्जांपल है, शी इज टॉल गर्ल, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास. Use the adjective instead of adverb after the following verbs. याद रखना. He looks angry. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. जब भी ये वर्ब आएंगे तो आपने हमेशा इनके बाद एडजेक्टिव यूज करना है. He looks angry. He is sad. इसमें स्मेल है, टेस्ट है, साउंड है, फील है, सी है, लुक है, सीम है, बी है, बी वर्ब जो होता है, ग्रो है, गेट है, बिकम है, अपीयर है, टर्न है, मेक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. She says that butter tastes. आंसर भी बाद में आपको मिल जाते हैं. Some is used in positive sentences, whereas an is used in negative
एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर आपके टेस्टों में ये आपको कंफ्यूज करती है चीज। प्लीज गिव मी एनी मिल्क गलत है। प्लीज गिव मी सम मिल्क। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी सम मिल्क। हाँ, जो जब नेगेटिव होगा तो फिर एनी का यूज होगा, और जब फिक्रे मुस्बत होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उनमें आपने सम का यूज करना है। ये बात नोट कर ले, कहीं लिख ले। अब आप इसको करेक्ट कर लें। आपको नजर आ रहा है ये रॉन्ग है, इसको अपने करेक्ट करना है। ये ठीक है। आई डोंट हैव एनी मिल्क आएगा। जब इंट्रोगेटिव होना है, सॉरी नेगेटिव होना है, तो उसमें यस फॉलोइंग वर्ड फॉलोड बाय द प्रपोजिशन टू। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड है, माइंड में रख लें। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, प्रेफरेबल, इनके बाद टू लगना है हमेशा। जब भी ये एडजेक्टिव यूज होंगे तो इनके बाद हमेशा टू यूज होगा। इसको नोट कर लें प्लीज। हेल्थ इज प्रीफरेबल देन वेल्थ, रॉन्ग। हेल्थ इज प्रीफरेबल टू वेल्थ। ठीक है। These used for all the superlative degrees। दी तमाम सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होता है भाई। So these not used before the superlative degrees if follows the possessive adjectives। हाँ, अगर इनके पास पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, मी, माई, माई, अवर आ जाए, तो फिर दी का यूज नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है नोट करने को। ही इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ही इज माई स्वीटेस्ट कजन, ही इज माई दी स्वीटेस्ट कजन गलत होगा। जब पोजेसिव आ जाए, जब मलकियत वाला कोई वर्ड आ जाए, माई, अवर, हर, तो फिर ये इसके साथ दी का यूज नहीं होगा। Always compare some one thing, same one thing with another on the homogeneity of same nature। अच्छा, in case homogeneity is not available, use than that of or than any other। अगर दोनों चीजें यानी एक तरह की नहीं है, एक नेचर की नहीं है, देखे ना, मेरी शर्ट आपसे अच्छी है। अब मेरी शर्ट और आपका तो आपस में कोई लिंक नहीं बनता ना, आप तो इंसान है। होमोजेनिटी यानी दोनों चीजों का अगर नेचर एक हो फिर तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों चीजों की नेचर एक नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर उसकी जगह पे आपको या तो देन दैट ऑफ लगाना पड़ेगा या देन एनी अदर लगाना पड़ेगा। माय वॉच इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। भाई मेरी घड़ी आपसे खूबसूरत तो नहीं ना, आप घड़ी से खूबसूरत है, जिसको शो नहीं कर रहा फिक्रे के अंदर। अक्सर हम पढ़ते हैं, बड़ी फेमस करेक्शन है ये। तो माय वॉच इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। अब जो एस लगा है ये शो कर रहा है कि आपकी घड़ी से ज्यादा खूबसूरत है। देन दैट ऑफ यू भी हो सकता था, लेकिन योर्स एस भी चल जाता है और देन दैट ऑफ भी चलता है। एरिया ऑफ कराची इज बिगर देन लाहौर। अच्छा, जो कराची का एरिया है वो लाहौर से बड़ा नहीं, लाहौर के एरिया से बड़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कराची इज बिगर देन दैट ऑफ लाहौर। ये दैट ऑफ कैसा यूज होता है?
डाटा जो एरिया को शो कर रहा है पीछे। Always compare same one thing with another on the homogeneity of the same nature. In case homogeneity is not available, then that any other. हम पढ़ चुके हैं भाई। This kind of apples would be sweeter than Portland's, than that of Portland's. Then apple ज्यादा है, so then those of, so then those of Portland बन जाएगा। अब जा रहा है जो एप्पल है वो पोर्टलैंड से अच्छे तो नहीं ना, उसके सेबों से अच्छे, उसके लिए कोई वर्ड नहीं था, हमने दो ऑफ लगा दिया एज ए प्रोनाउन। शी इज मोर टॉलर देन आई गलत है, शी इज टॉलर देन आई। यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इज रॉन्ग। एग्जांपल दी हुई है, बड़ी सिंपल सी है। दिस इज मोस्ट डेंजरस स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, मोस्ट की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट खुद लगा हुआ है। Following adjectives are not made comparative or superlative degrees. More or most, these adjectives are incomparable. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लें, पक्की पल्ले बांध ले बात। आइडियल, फुल, एक्सट्रीम, सर्कुलर, इंटायर, यूनिक, परफेक्ट, राउंड, कंप्लीट, यूनिवर्सल, प्रिफरेबल, फेवरेट, करेक्ट एंड डेड। Rule number 12, very plus positive degree, very good, very tall, far, much plus comparative degree, much better, much plus past participle, very plus past participle, she is very happy, I feel much better, Israel is much hated by us, Jessica is very interested। अब very नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भला? Much interested। Yes, description, little, least, few, fewer, fewest, इसको रीड करें। Little about nothing, a little, a bit, few about, none, few, the few, some specified. He made tea with little milk. He made tea with a little milk. He made tea with a few milk, गलत है, बाकी का आप गुजार है, पता ही है इस चीज का। She made tea with a little milk in the jug. She made tea with the little milk in the jug. लिटिल होता है बिल्कुल बहुत कम हो, ना होने के बराबर, ठीक है। दी लिटिल होता है जो स्पेसिफाइड हो, मतलब जो मखसूस पड़ा हुआ है। दी लिटिल जग यानी जो दूध जग में पड़ा हुआ था, ठीक है। ए लिटिल होता है थोड़ा सा, लिटिल होता है बिल्कुल जो ना होने के बराबर।
दोबारा इसको अच्छी तरह देख ले। लिटिल होता है जो ना होने के बराबर हो, ए लिटिल होता है जो थोड़ा सा हो, दी लिटिल होता है जो हाथ मखसूस पड़ा हुआ जो कहीं जगह पर कोई चीज। इस तरह ही मेड टी विद लिटिल मिल्क, बिल्कुल ना होने के बराबर चाय बनती नहीं है, ठीक है। फिर उसने ए लिटिल मिल्क सही होगा, ठीक है। फ्यू मिल्क तो वैसे गलत है, गिनती वाला लगा दिया उसने। ही मेड टी विद लेस मिल्क, ये भी गलत है। शी मेड टी विद अ लिटिल मिल्क इन द जग, यानी वो दूध जो जग में पड़ा हुआ था, यानी स्पेसिफिक, a bit specified ऊपर लिखा हुआ रूल के अंदर आप देख लिया हुआ। She made tea with the little milk in the jug. He spent a few rupees he had. He spent the few rupees he had. Try to correct this sentence. It is a question. Try to correct it. Of these four underlined parts of speech, I need no fewer than, ये इसका आपको आंसर खुद बनाना चाहिए। You should try to correct this sentence. Yes, old, older, oldest is used for the people other than members of family. अब एक खानदान के बंदे ना हों, old, older, oldest is used for the people older than other members of family. Elder, eldest is used for the members of family. My sister is older to me गलत है, is elder to me। जब एक खानदान के बंदे आपसे बड़े हैं तो फिर उसके लिए elder यूज होता है, और अगर आम लोग आपसे खानदान से बाहर बड़े हैं तो older होता है एज के अंदर। इसको करेक्ट कर लें आप, elder की जगह ज़रा older आएगा। क्वेश्चन, try to correct it. It is, इसको अगर करेक्ट करना है तो अब ज़रा फ्रेंड है तो यहाँ क्या आएगा, ओल्डर आ जाएगा। फैमिली का बंदा नहीं है तो यहाँ पर ओल्डर आ जाएगा। यस, मिस्टर शान इज ओल्डेस्ट ऑफ द डॉडसन फैमिली। इसको करेक्ट करें भाई। ट्राई टू करेक्ट इट। शी इज काइंड एनफ टू हेल्प अस। Adjective is always used before the adverb enough. Adjective enough is always used before the noun. He is kind enough to help us, ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं। I have enough money. Try to correct this sentence. Worth plus ing. This film is worth watching, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। This is a sight worth enjoying. Much too, this house is much too big for my family. We have already discussed it in the last lecture. Too for negative intensity, very for positive intensity. He is very tired. He is too tired to run. टू होता है फॉर नेगेटिव, यानी किसी चीज का शदीद होना लेकिन नफी के मानों में, मनफी यानी मुस्बत ना होना। और वेरी हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज होता है। ट्राई टू correct this sentence. Try to correct this. कल भी हम डिस्कस किया था, इज ए कवर्ड मैन, ही इज ए कवर्डली मैन, ही इज ए माइजर।
डू नॉट यूज एनी विद नो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें. If any is used after second degree, add other to it. बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपरों में आ जाती है फ्रैक्शन. गालिब इज ग्रेटर देन एनी पोइट गलत है. गालिब इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट. जब कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो ज़ाहिर है वो दो के दरमियान कंपैरिजन होना चाहिए. जब देन एनी पोइट होगा फिर वो तो किसी भी शायर से है ना. जब ग्रेटर लगाना है तो फिर याद रखना ये दो को कंपैरिजन बनाना पड़ेगा. या तो देन एनी अदर लगाना पड़ेगा या फिर ये कहना पड़ेगा गालिब इज दी ग्रेटेस्ट पोइट. या थर्ड सुपरलेटिव लगानी पड़ेगी, और अगर ग्रेटर लगाना है तो फिर एनी अदर लगाना पड़ेगा. ये दोनों ठीक है. If comparative degree is followed by of and use the comparative degree, he is taller of the two. हाँ, हमें यहाँ पर यूज ऑफ दी करना चाहिए, फिर ना आर्टिकल दी यूज होगा. If comparative degree is followed by of, use the before the comparative degree. He is last in the list. He is latest in the list. Late, later, latest and used for time. Later, last and used for position. अच्छा जी. Present participle, it is used as verb or adjective. Past participle is used as a verb or adjective. Then present participle is used for action nouns, and past participle is used for the passive nouns. When I reached the village on my aeroplane, I met surprised people. When I reached the village on my aeroplane, I met surprising people. Disturbing the student should be expelled. Disturbed student should be expelled. Maybe try to note it. Concentrate on the usage of following words: furthermore, father, next, nearest, in time and place, a good many, in large number, can't, short, type, almost used in singular. His father said that he would come. He father said that he would come. He further said. फादर होता है डिस्टेंस के लिए, और फर्दर होता है वैसे कोई मजीद बात करना ना आगे. फर्दर मोर के लिए तो, फार्दर डिस्टेंस के लिए तो, अवे के लिए दूर. आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल. आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल होगा. यानी काइंड, शार्ट और टाइप है ना, ये आमतौर पे सिंगुलर होते हैं. काइंड, शार्ट एंड टाइप आर मोस्टली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आ जाती है भाई, टेस्टों में. So these are some sentences. Try to correct them. He sang beautifully the song. He helps me too frequently. He yesterday came here. He's a miser man. He has no any money to buy a pen. Ghalib is greater than any poet. सबको correct करें भला. He's far more better than her sister.
These are the MCQs. Try to solve them. This answer sounds fairly. इसमें जो reflection क्या है? Again the MCQs. The mind experiences more unconscious than conscious activity. And this offer is not enough good to be accepted. This is very important fraction. Try to correct it. Sugarcane contains nut vitamins. Try to correct it. Joseph is the most activist of all. Try to correct it. Word summary of the poem are so ambiguous to be understood. Try to correct them. The narrower lens diameter is more great than depth of the field is very easy to correct. The news editor asked the reporter what the last news. These are past paper questions. Both friends like the same girl to marry. Here is also you need to correct. So this is also one of the MCQs. Ali is very good and most hardworking boy of the class. Okay, thank you very much. So this was a long lecture. I tried to speak less so that you may note down everything that was written on the slides. See you inshallah next time. Thank you very much for joining me. See you in the next lecture. Thanks a lot. भाई ये लेक्चर जरा बड़ा लंबा लेक्चर था, इसको अब आपने दोबारा सुनना है, 2-3 बार सुने, इसको रिवाइज करें और इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्राई टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ यूजेस एंड दोज questions that are left unsolved, try to solve them and get them checked by some teacher or nearby friend. Okay, Janab, thank you very much.